Meanwhile, all eyes on Maharashtra this time because Devendra Fadnavis' names appears to be now have been cleared by the BJP High Command, but the announcement is still awaited. The decks appear cleared, but it is eventually amid the scheduled meeting of Mahayuti leaders in Mumbai that was expected to discuss portfolios this evening has been abruptly called off. Eknath Shinde has left for his village in Satara. Sources say that means there could be a delay in Maharashtra Chief Minister's announcement. That means, as per our sources, Eknath Shinde has reportedly been informed that Fadnavis is set to take the Chief Minister's post. Initially opposed to the Deputy CM's role earlier because he was the Chief Minister, Shinde appears to have softened his stand but wants a home ministry of the state for himself. The development comes after top Mahayuti leaders including Devendra Fadnavis, Eknath Shinde, Ajit Pawar met the Home Minister Amit Shah late last evening. Cabinet allocations were discussed. BJP wants the lion's share of about 20 ministries. Another key meeting in Mumbai was expected this evening to finalize, and that is not happening right now. However, the oath ceremony has been shortlisted for either 2nd December or the 5th December. That means in the coming week. महायुतीची महाबैठक झाली, अतिशय सकारात्मक झाली आणि आता पहिली बैठक झाली. आता पुन्हा उद्या बैठक होईल आणि त्यातून निर्णय होईल. महायुतीचा मुख्यमंत्री आणि महायुतीची मंत्रिमंडळ गटित होईल. उद्याची बैठक कुठं होणार आहे? मुंबईत की दिल्लीमध्येच होणार आहे? उद्या मुंबईत होईल. काही चर्चेला काही तथ्य नाहीये. आम्ही सगळ्यांनी पहिल्यांदा ठरवलं होतं की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरपीआय, आठवले आणि इतर सगळे आमचे घटक पक्ष आहेत, त्या सगळ्यांच्या बरोबर आपण जास्तीत जास्त जागा निवडून आणायच्या आणि पुन्हा एकदा या राज्यामध्ये महायुतीचं सरकार आणायचं हे आमचं पहिलं टार्गेट होतं. ते टार्गेट आम्ही यशस्वी केलेलं आहे. मी या निमित्तानं महाराष्ट्रातल्या तमाम मतदार बंधू भगिनींचं आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो, त्यांचा कृतज्ञता व्यक्त करतो. त्यांनी खूप मोठी आमच्यावर विश्वास टाकलेला आहे. आम्ही जे सांगितलेले ते त्यांनी ऐकलेले आहे. आता जबाबदारी आमच्यावर वाढलेली है. मुझे लगता है कि शिंदे ग्रुप का यूज का विषय नहीं. शिंदे ग्रुप हमारे साथ आए थे, उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद मिला ही था और अभी आंकड़े ऐसे आ गए कि भाई बीजेपी के इतने ज्यादा आंकड़े आ गए कि वहाँ बीजेपी का हाई कमांड ने जिस तरह माननीय एकनाथ शिंदे जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब जो निर्णय लेंगे वो निर्णय उनको मंजूर होगा. उसके मुताबिक मुझे लगता है कि जिस तरह ज्यादा सीटें आई है उसी तरह देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए. क्या निगोसिएशन हो रहे? परसों ही माननीय एकनाथ जी शिंदे जो केयरटेकर सीएम है, उन्होंने कहा कि मैं कोई अटकाव नहीं डालना चाहता, मैं कोई बाधा नहीं बनना चाहता सीएम पद को लेकर. उन्होंने पूरा विश्वास जताया है माननीय मोदी जी पर और माननीय अमित शाह जी पर. हमने उनको अपना नेता चुना है. जो कोई भी पार्टी की तरफ से बात करनी है या कितने पोर्टफोलियोज मांगने हैं, क्या होगा, ये सारा हमने उन पर छोड़ दिया है. As it's been over a week and there's not been an announcement, there's already fierce criticism coming in from the opposition toward the BJP specifically. The Congress Neta Bhai Jagdap has mocked the Mahayuti leaders for going to Delhi, claiming that they are performing a mujra in front of two top netas and labeling them as two sultans. Of course, the derogatory manner in which this has been mentioned, slamming the meeting. Sena UBT MP Sanjay Raut has also added that key discussions about Maharashtra state's leadership and cabinet arrangements are happening in Delhi, highlighting that there is a subservience of the Mahayuti leaders of Maharashtra to government at the centre. The Aghadi leaders are accusing Mahayuti leadership of undermining Maharashtra's pride by constantly seeking approval, validation from Delhi instead of making decisions in Mumbai. इनका ये यहाँ के नेता जितने भी हैं देश भर के, ये कुछ भी नहीं है. इन्हें मुजरा करना पड़ता है उधर जाके दिल्ली में, और दिल्ली में दो सुल्तान बैठे हैं, वही सब निर्णय लेते हैं. ये 2014 से हम देखते हैं, ये यहाँ बहुत बड़ी भाषण करते हैं, बहुत बड़ी दलीलें देते हैं, लेकिन ये सारे मुजरा करने वाले हैं. वहाँ ये मुजरा करके आए हैं, दोबारा गए हैं, पर निर्णय तो वहाँ जो 2 सुल्तान बैठे वही लेंगे. महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी. जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है. आप एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए.
चाहे उनके एक अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाईकमांड है। Right, so as we wait for that final announcement on that.